Hello everyone, welcome to my YouTube channel Accounting Knowledge. Hope you all are doing well. As you already know, the Maharashtra board result was announced for the academic year 2019-20. So I would like to congratulate all 12th standard students and I would like to quote some line to them that the success is not the final and the failure is not the fatal. It is the courage to continue that counts. Okay, so let's move forward. In this video lecture, we are going to learn that is chapter 1 of 12th standard, that is partnership final account. So those who already have subscribed, they know that we already uploaded a lot of video based on chapter 1. So in this lecture, we are going to learn the sums, and that sum is a second sum we are going to learn. So once again, it's my request, those who have not subscribed, please subscribe my channel. If you like it and you understand the concept, please share with your friends. Okay, so let's move forward. In this lecture, first, as you already know, I will going to read the sum. Once I will start reading the sum, okay, together with that, I will also explain which item will transfer to which account. Okay, so all detail I will explain today together with that. What you have to do, सबसे पहले तुमको क्या करना है, जब मेरा पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करके हो जाएगा, so what you have to do, you have to take a screenshot of that question, and once I will start solving that problem, you have to be solve that same problem in your notebook. Understood? So let's start reading the sum. Here you can see that is from the following trial balance and the adjustment given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that day in the books of Shilpa and Katrina. So it means that in that sum there are two partners. That is, one is Shilpa and another is Katrina. Okay. Here what we have to do, we have to prepare, that is trading account, profit and loss account as well as balance sheet. As I already explained you that in question 1, that is if in the sum they have not told to prepare the partners capital account, but then also we have to prepare the partners capital account. One important thing is that, which I already explained you in question number 1, that they already give profit sharing ratio, but in that sum, that is they had not given the profit sharing ratio. So that already I explained when I am explaining the theory part. In the absence of information given about the profit sharing ratio, so what we have to do, we have to share the profit as well as losses equally. Okay, what we have to do, we always have to share profit as well as losses equally in the absence of information. That you have to keep in your mind. Understood? So मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम लोग सम कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे. क्वेश्चन रीड करने के साथ साइड बाय साइड हम ये भी लिखते जाते हैं कि वो आइटम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा. क्लियर? तो ये क्या करता है, हमारा टाइम सेव कर देता है. फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट रीड करते हैं. तो जब हम एडजस्टमेंट रीड करते हैं उसके सामने हम ये भी लिख देते हैं कि वो एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट कहाँ पे होगा, और जो भी आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार मार्क कर देते हैं. अंडरस्टूड? तो सबसे पहला स्टेप्स अपना क्या होता है, सम सॉल्व करते समय पहले तो क्वेश्चन पूरा रीड करना है. दैट इज पहले जो ऊपर का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसको रीड करना है, पार्टनर्स के नाम को अंडरलाइन करना है, प्रॉफिट शेयरिंग को भी क्या करना है, अंडरलाइन करना है. वो करने के बाद एक एक आइटम को रीड करना है और उसके सामने क्या करना है, दैट इज लिखते जाना है कि वो आइटम कहाँ पर ट्रांसफर होगा, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा. क्लियर? फिर उसके बाद पहला स्टेप्स हमको क्या करना है, दैट इज आइटम को रीड करना है और उसके सामने क्या करना है, लिखते जाना है कि वो आइटम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा. सेकेंड स्टेप हमको क्या करना है, एडजस्टमेंट रीड करना है. फर्स्ट एडजस्टमेंट रीड करेंगे उसके सामने ही हमको लिख देना है कि वो उसका दो इफेक्ट क्या होगा, और जो भी आइटम के ऊपर क्या रहेगा, एडजस्टमेंट रहेगा, उसको क्या करना है, स्टार मार्क कर देना है. फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सम्स
सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर व्हाट आई सेड? तो यहाँ पे देखो सबसे पहला आइटम क्या दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे जाता है, बैलेंस शीट असेट साइड। फर्नीचर बैलेंस शीट असेट साइड। सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट असेट साइड। स्टॉक, अभी यहाँ पे स्टॉक में देखो क्या दिया हुआ है, डेट दिया है 1/4/2018। हमको क्या करना है, दैट इज बैलेंस शीट कभी बनाना है 31 मार्च 2019 को बनाना है। क्लियर? और यहाँ पे डेट क्या दिया है, 1/4/2018। तो मतलब ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। क्लियर व्हाट आई सेड? क्योंकि 1/4/2018 को हमारा ईयर स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2019 को हमारा ईयर क्या होगा, खत्म होगा। क्लियर? तो ये हम लोग कौन से ईयर का, 2018-19 का हम लोग क्या करने वाले हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर करने वाले। क्लियर? बैड डेब्ट्स कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला प्रिपेयर करते हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, सैलरी, P&L डेबिट, carriage inward, that is very important. There are two types of carriage, one is carriage inward and another one is carriage outward. Understood? So you always have to remember carriage inward कहाँ पे जाता है, कैरियज इनवर्ड हमेशा कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ओके, और कैरियज आउटवर्ड अगर सम में दिया रहेगा तो वो कहाँ पे जाता है, दैट इज वो कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। अभी आप बोलोगे कैरियज इनवर्ड एंड कैरियज आउटवर्ड होता क्या है, कैरियज इनवर्ड क्या होता है, ओके। कैरियज इनवर्ड मतलब जब हम लोग गुड्स क्या करते, परचेस करते हैं, जब हम लोग गुड्स परचेस करते हैं तो उसके ऊपर जो भी फ्रेट और जो भी कैरियज पे करना पड़ता है दैट इज कैरियज इनवर्ड। ओके, तो परचेस के ऊपर एक्सपेंसेस होता है, तो परचेस हम लोग ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए कैरियज इनवर्ड भी हम लोग ट्रेडिंग पे रिकॉर्ड करेंगे। कैरियज आउटवर्ड क्या होता है, जब हम लोग गुड्स सेल करते हैं, तो गुड्स सेल करते तो भी कुछ फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस होता है, तो दैट इज द कैरियज आउटवर्ड। तो वो कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। क्लियर? सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड। पीसी मतलब पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड। ओके, नेक्स्ट वन डिस्काउंट। ओके, तो डिस्काउंट को ऑलरेडी मैंने बताया था, क्या बताया था, अगर डिस्काउंट क्या दिया हुआ रहेगा, दैट इज डेबिट साइड में दिया रहेगा तो वो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, और अगर वो क्रेडिट साइड में दिया रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जाएगा। तो ये डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड दिया है, सॉरी ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड दिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। एडवांस गिवन टू शाहरुख, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या दिया हुआ है, एडवांस गिवन टू शाहरुख, ये कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट असेट्स। अभी ये बैलेंस शीट असेट्स में क्यों जाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एडवांस गिवन, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखने का कि जो भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड वाला आइटम है वो कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग डेबिट, P&L डेबिट या तो बैलेंस शीट असेट्स। हमेशा ये याद रखने का, ये तीनों साइड का आइटम ट्रेडिंग डेबिट, P&L डेबिट एंड बैलेंस शीट असेट्स, ये तीन जगह ही जाता है। ओके, नेक्स्ट वन दैट एडवांस गिवन टू शाहरुख, हमने क्या किया है, दैट इज शिल्पा एंड कैटरीना ने क्या किया है, एडवांस दिया है। किसको एडवांस दिया है, शाहरुख को एडवांस दिया है। एडवांस गिवन ना, एडवांस गिवन मतलब शाहरुख को एडवांस दिया है। जब शाहरुख को एडवांस दिया तो इट्स मीन दैट इन फ्यूचर हमको क्या मिलने वाला है, उसका पैसा रिटर्न मिलने ही वाला है जो हम लोग ने एडवांस दिया है, तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए असेट्स हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो इसीलिए वो बैलेंस शीट असेट्स में जाएगा। तो कभी भी लोन एंड एडवांसेस अगर डेबिट साइड दिया होता है तो उसका मतलब होता है लोन एंड एडवांसेस गिवन, और अगर वो क्रेडिट साइड दिया रहता है तो लोन एंड एडवांस टेकन। अंडरस्टूड? लोन एंड एडवांस टेकन वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है, हमने लोन लिया है, इन फ्यूचर हमको उसको पे करना है, तो वो हमारा लायबिलिटी होगा जो क्रेडिट साइड दिया रहता है। लेकिन ट्रायल बैलेंस के अगर डेबिट साइड लोन एंड एडवांस दिया रहता है तो वो क्या होता है, वो हमने लोन एंड एडवांस दिया हुआ है, दिया है मतलब वो हमारे लिए असेट्स है, इन फ्यूचर हमको वो मिलने वाला है। क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कैश इन हैंड बैलेंस शीट असेट्स, कैश एट बैंक बैलेंस शीट असेट्स, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अगेन डेबिट साइड दिया हुआ है मतलब
क्या रहेगा ये, इंटरेस्ट अलाउड। क्रेडिट साइड रहता था तो वो इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट अलाउड है तो वो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नेक्स्ट वन कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कमीशन अलाउड है ये, ओके। क्रेडिट साइड रहेगा तो कमीशन रिसीव। रॉयल्टीज ऑलरेडी बताया था मैंने, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो अपना ये डेबिट साइड का क्या हो गया, डेबिट साइड का सारा आइटम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड देखेंगे। कैपिटल तो ऑलरेडी मैंने बताया था, कैपिटल कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके। नेक्स्ट वन बिल्स पेबल, कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी, ओके। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये क्या होता है, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस मतलब हमारे अकाउंट में पैसा है, वो हमारे लिए बैंक बैलेंस होता है, दैट इज कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ओके। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, वो क्या होता है हमारे लिए, क्या होता है, दैट इज लायबिलिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल दैट इज हमने किसी को चेक इशू कर दिया, हमने क्या किया, किसी थर्ड पार्टी को चेक इशू कर दिया, लेकिन जब वो थर्ड पार्टी चेक बैंक में डिपॉजिट करने गया तो मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं है, अंडरस्टूड, मेरे अकाउंट में क्या है, पैसा नहीं। तो जब ऐसा नहीं होता है तो वो चेक क्या होता है, चेक डिसऑनर हो जाता है। और जब चेक डिसऑनर हो जाता है तो मुझे उसका पेनाल्टी पे करना पड़ेगा। मेरा बैंक मैं उसकी रेगुलर कस्टमर हूँ तो मुझे फ़ोन करेगा, क्या फ़ोन करेगा कि दैट इज़ मैं आपके चेक को क्लियर करवा दे रहा हूँ, लेकिन क्या है, बाद में जब आपके अकाउंट में बैलेंस आएगा तो वो पैसा क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो दैट इज़ द बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब मुझे पैसे की ज़रूरत है तो बैंक ने क्या किया, ऑन बिहाफ ऑफ दैट इज़ देयर कस्टमर दे पे द अमाउंट टू द थर्ड पार्टी, अंडरस्टूड, जबकि उनके अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी। तो दैट इज़ द बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब वो मेरे लिए लायबिलिटी है जब इन फ्यूचर मुझे बैंक को वो पैसा रिटर्न करना पड़ता है, क्लियर। नेक्स्ट वन परचेस रिटर्न, लेस फ्रॉम परचेस, सन्ड्री क्रेडिटर, बैलेंस शीट लायबिलिटी, बैंक लोन। अभी ये कौन सा बैंक लोन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन सा बैंक लोन है, दैट बैंक लोन इज क्या रहेगा, ये बैंक लोन टेकन, मतलब शिल्पा एंड कैटरीना ने लोन लिया हुआ है, शिल्पा एंड कैटरीना ने लोन लिया मतलब इन फ्यूचर उनको पे करना है, तो ये लायबिलिटी है। इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, रिसीव मतलब इनकम है, आरडीडी हमारा फॉर्मूला में जाता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। ये कौन सा आरडीडी है, ये कौन सा आरडीडी है, दैट इज ओल्ड आरडीडी, क्लियर। जो ट्रायल बैलेंस का आरडीडी होता है वो ओल्ड आरडीडी, और जो एडजस्टमेंट में दिया रहता है वो क्या होता है, न्यू आरडीडी, क्लियर। सेल्स कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग क्रेडिट, सेल्स कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग क्रेडिट, क्लियर। सो अभी ये हमारा सारा आइटम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट रीड करेंगे और उसके सामने लिख देंगे। द स्टॉक इन हैंड वॉज वैल्यू एट ₹58,000 ऑन 31 मार्च 2019। तो अगेन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दैट इज सिर्फ क्या दिया हुआ है, ओनली वन स्टॉक का अमाउंट दिया है। जब दो स्टॉक का अमाउंट दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, तो ये मैंने बार बार बताया कौन सा प्राइस लेना रहेगा, विच एवर इज लेस, लेकिन यहाँ पे एक ही अमाउंट दिया है तो ये चीज को हमको ध्यान में सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसका दो इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट असेट्स। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट असेट्स, क्लियर। नेक्स्ट वन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अभी किसके ऊपर है, किसके ऊपर है, एक रॉयल्टी के ऊपर, एक वेजेस के ऊपर। देखो हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे, रॉयल्टी कहाँ पे, सबसे लास्ट में, इसको स्टार मार्क किया। वेजेस कहाँ पे, यहाँ पे देखो वेजेस यहाँ पे, इसको भी हम लोग ने स्टार मार्क किया, क्लियर। तो जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होगा उसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। अभी इसका दो इफेक्ट क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी आउटस्टैंडिंग होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते। आउटस्टैंडिंग मतलब दैट इज साल भर का रेंट पे करना था, लेकिन मैंने कितना किया है, 6 महीने का ही पे किया है। तो जब 6 महीने का पे किया है, 6 महीने का पे करना बाकी है, तो वो क्या होगा, दैट इज अनपेड एक्सपेंसेस, तो वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ओके। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा उसका, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, क्लियर। नेक्स्ट वन सैलरी पेड इन एडवांस,
इसको अभी काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सैलरी पेड इन एडवांस मतलब क्या है ये, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रीपेड। प्रीपेड सैलरी भी हम लोग पे कर सकते हैं कि नहीं। हम लोग ने स्टाफ को इन एडवांस में सैलरी दे के रखा है, पहले से ही दे के रखा है, ठीक है। मई मंथ का सैलरी हम लोग ने उनको अप्रैल में ही दे दिया है, तो दैट इज कॉल्ड सैलरी पेड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंसेस इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सैलरी के ऊपर स्टार मार्क कर देंगे। यहाँ पे देखो मैंने सैलरी के ऊपर स्टार मार्क किया है, और फिर उसका दूसरा इफेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस। प्रीपेड है ना, तो प्रीपेड हमेशा क्या होता है, एक्सपेंसेस में से माइनस होता है। क्यों माइनस होता है, 12 महीने का सैलरी पे करना था, लेकिन हम लोग ने क्या किया है, दैट इज 15 महीने का सैलरी पे कर दिया। 5 महीने का उसको क्या किया है, सॉरी 3 मंथ का मैंने उसको एक्स्ट्रा पे करके रखा है। जब 3 महीने का मैं उसको एक्स्ट्रा पे करके रखा है, मैं यहाँ पे बैलेंस शीट क्या करने वाली हूँ, 1 साल का ही बनाने वाली हूँ। तो जो मैंने उसको एक्स्ट्रा पे करके रखा है वो मैं एक्सपेंसेस से क्या करती हूँ, माइनस कर देती हूँ। तो इसीलिए जो प्रीपेड होता है वो हमेशा एक्सपेंस में से क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, और उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाता है, बैलेंस शीट असेट्स। क्लियर, प्रीपेड बैलेंस शीट असेट्स, और ये क्या होता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्यों बैलेंस शीट लायबिलिटी में जाता है, बिकॉज क्या होता है, ये हमको पे करना है, इन फ्यूचर पे करना है, तो हमारे लिए कर्जा है। प्रीपेड एक्स्ट्रा पे कर दिया है, मतलब फ्यूचर में पे नहीं करना है, तो हमारे लिए असेट्स हो गया है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन, create a provision for bad debts of ₹1,000 and reserve for doubtful debt, that is 3% on debtors। तो इसका दोनों इफेक्ट, एक तो क्या होता है, एक तो कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, एक कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। जो मैंने फॉर्मूला बताया है फर्स्ट वाले सम में, वो फॉर्मूला में जाएगा। ओके, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाता है, लेस फ्रॉम डेटर्स। तो हम लोग यहाँ पे देखो डेटर्स को स्टार मार्क कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डेटर्स को स्टार मार्क करेंगे। ओके, यहाँ पे देखो डेटर्स दिया, उसको हम लोग ने स्टार मार्क कर दिया। स्टार मार्क करने का मतलब ये सारे आइटम हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, इनर कॉलम में। क्लियर। नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 5% एंड फर्नीचर 10%। तो हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे, किसके ऊपर, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर स्टार मार्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन फर्नीचर के ऊपर स्टार मार्क करेंगे। तो कर लिया। इसका दो इफेक्ट क्या होगा, सबसे पहले दैट इज लेस फ्रॉम असेट्स, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। क्लियर। तो ये हमारा सम हो गया। सम में हम लोग ने क्या किया, पहले ऊपर का जो दिया हुआ था हेडिंग, उसको हम लोग ने रीड किया, और उसमें पार्टनर्स कितने हैं, शिल्पा एंड कैटरीना, 2 पार्टनर है, उसको अंडरलाइन करेंगे। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग दिया रहेगा तो अंडरलाइन किया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पे ऊपर हम लोग लिख लेंगे इक्वली। क्या लिख लेंगे, इक्वली। फिर हम लोग ने क्या किया, ट्रायल बैलेंस के आइटम को क्या किया, रीड किया, और उसके साथ आइटम्स हम लोग लिखते गए कि वो कहाँ पे पोस्ट होगा। फिर हम लोग ने क्या किया, एडजस्टमेंट को रीड किया, और एडजस्टमेंट को रीड करने के साथ क्या किया, स्टार मार्क करते गए और उसका 2 इफेक्ट करते गए। क्लियर। अब इसके बाद कुछ क्या होता है, वर्किंग नोट होता है, वो हम लोग पहले से ही कर लेंगे। कुछ क्या होता है वर्किंग नोट, वो हम लोग पहले से ही कर लेंगे। आप क्या करेंगे, जब सम करते रहेंगे उस समय भी उसके साथ वर्किंग नोट करेंगे, तो दैट विल बी बेटर। सबसे पहला वर्किंग नोट डेटर्स का हम लोग ऑलरेडी कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है डेटर्स के ऊपर क्या है, एक तो क्या करना है, बैड डेट्स माइनस करना, दूसरा आरडीडी भी क्रिएट करना, और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं। तो हमारा देखो ये हमारा वर्किंग नोट है। डेटर्स कितना दिया हुआ है, दैट इज यहाँ पे देखो सन्ड्री डेटर 40,000 दिया है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 14,000। उसमें से क्या करना है, उसका 2 इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, लेस क्या होगा, बैड डेट्स, लेस बैड डेट्स 1,000। हमेशा सबसे डेटर्स में से सबसे पहले क्या माइनस करते, बैड डेट्स माइनस करते, फिर आरडीडी माइनस करते। तो कितना आया 39,000। अब ये 39,000 के ऊपर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, 3% आरडीडी कैलकुलेट करेंगे। तो वो हम लोग ने कैलकुलेट किया, तो कितना आया 1130। ओके, तो हमारा फाइनल जो वर्किंग नोट का डेटर्स है वो 3780। ये जस्ट वर्किंग नोट हम लोग करके रखेंगे, बिकॉज ये सम करते समय आपको ईजी होगा। आपको ये वर्किंग नोट कभी करना है, जब आप सम करेंगे तभी आपको करना है। सेकेंड वर्किंग नोट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, दैट इज बिल्डिंग का कितना आएगा 5%, तो कितना आएगा 1890। फर्नीचर का कितना आएगा 1725।
क्लियर। थर्ड वन, ये जो होगा वर्किंग नोट नंबर 3, ये फॉर्मूला मैंने क्या बोला, दैट इज न्यू बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाता है, प्लस दैट इज ओल्ड बैड डेब्ट्स, सॉरी सबसे पहले क्या आता है, ओल्ड बैड डेब्ट्स। कौन सा वाला ओल्ड बैड डेब्ट्स आएगा, देखो ये वाला 400, कौन सा वाला आएगा 400 ओल्ड बैड डेब्ट्स। फिर क्या होगा, प्लस न्यू बैड डेब्ट्स, प्लस क्या आएगा, न्यू बैड डेब्ट्स। न्यू बैड डेब्ट्स अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया, कितना आया 1000। फिर क्या होगा, प्लस न्यू आरडीडी, वो भी हम लोग ने अभी कैलकुलेट किया 1170, और माइनस ओल्ड आरडीडी ये वाला 1000। तो ये सब करेंगे तो हमको फाइनल बैड डेब्ट्स कितना मिलेगा, 1570। ये हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ठीक है, ये हम लोग ने वर्किंग नोट किया है, बस सम करते समय फिर से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हियर वी आर गोइंग टू सी आवर सम्स, हाउ वी हैव टू सॉल्व। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट बना लेना है, और फॉर्मेट बनाने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, पोस्टिंग करना रहता है, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट करना रहता है, फिर बैलेंसिंग। पहला स्टेप पोस्टिंग, सेकेंड स्टेप एडजस्टमेंट, एंड थर्ड स्टेप बैलेंसिंग। ओके, तो मैंने क्वेश्चन में ऑलरेडी पूरा क्वेश्चन आपको बता दिया है, तो आप अगर ये सम नहीं देखेंगे तो भी आप वो सम पूरा खुद से सॉल्व कर सकते हैं। बट लेट्स लुक इनटू द सम्स एंड सोल्यूशन, हाउ टू सॉल्व इट। सबसे पहले ऊपर लिखने का, क्या लिखने का, दैट इज इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कैटरीना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो ये हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कंबाइंड बना रहे। क्लियर। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, यहाँ पे आप लिखोगे डेबिट साइड, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्रेडिट साइड। क्लियर, ये अमाउंट आएगा। फिर क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल, तो पर्टिकुलर, फिर दो पार्टनर है शिल्पा एंड कैटरीना, तो यहाँ पे दोनों पार्टनर का हम लोग ने नाम लिख दिया। ओके, शिल्पा एंड कैटरीना। यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी पर्टिकुलर्स आएगा, यहाँ पे शिल्पा एंड कैटरीना, अमाउंट की जगह नाम आएगा, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स रहेगा। अगेन यहाँ पे थोड़ा सिली मिस्टेक हो गया है, यहाँ आपको क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स। क्लियर। नेक्स्ट वन, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। तो ये हमारा क्या पूरा फॉर्मेट है। अब हम लोग सम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग पोस्टिंग करेंगे। ओके, सबसे पहला आइटम क्या दिया था, लैंड एंड बिल्डिंग, उसके ऊपर स्टार मार्क था, तो उसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। 37,800 इनर कॉलम में लिखा हम लोग ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेकेंड आइटम क्या है, दैट इज फर्नीचर को भी हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि क्या दिया हुआ है, उसके ऊपर स्टार मार्क दिया हुआ है। थर्ड आइटम क्या है, डेटर्स के ऊपर भी क्या है, दैट इज डेटर्स के ऊपर भी क्या है, स्टार मार्क है, तो उसको भी हम लोग ने कहाँ पे लिखा, इनर कॉलम। ये फर्स्ट वाला कॉलम हमारा इनर होता है, और ये सेकेंड वाला आउटर होता है। नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे लिखेंगे, स्टार मार्क आई थिंक सो सम में नहीं है, तो उसको हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन क्या है, बैड डेब्ट्स। अब हम लोग जब बैड डेब्ट्स लिखेंगे तो इसका पूरा फॉर्मूला हम लोग एज इट इज लिख लेंगे, और हम लोग ने, मैंने आपको इसका वर्किंग नोट करके भी दिखाया है। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, पहले हम लोग ने क्या लिखा, ओल्ड बैड डेब्ट्स जो प्रॉफिट एंड लॉस में दिया हुआ है, तो ओल्ड बैड डेब्ट्स 400 प्लस क्या लिखते हैं, न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी, प्लस क्या रहेगा, न्यू आरडीडी, और माइनस क्या रहेगा, ओल्ड आरडीडी, तो ये हम लोग ओल्ड बैड डेब्ट्स लिखा, तुरंत उसके नीचे ये पूरा फॉर्मूला लिख देने का, बाद में जैसे जैसे वो आइटम आएगा उसको हम लोग पोस्टिंग करते जाएंगे। क्लियर व्हाट इज इट। नेक्स्ट आइटम, ओके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट हम लोग उसको कहाँ पे लिखेंगे, आउटर कॉलम में। नेक्स्ट वन इज दैट वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है, उसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, इनर कॉलम में। नेक्स्ट वन दैट इज सैलरी के ऊपर भी क्या है, एडजस्टमेंट है, यहाँ पे आप देखिए इनर कॉलम में लिखा मैंने, कहाँ पे लिखा, इनर कॉलम में। नेक्स्ट वन इज दैट कैरियज इनवर्ड, क्या है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट अमाउंट दैट इज लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस होगा तो उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज दैट ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल में लिखा ड्राइंग। शिल्पा का कितना दिया हुआ है ड्राइंग,
2000 तो शिल्पा के कॉलम में, कैटरीना का कितना दिया हुआ है 3000, तो क्या लिखेंगे हम लोग कैटरीना के कॉलम में। क्लियर। नेक्स्ट अमाउंट इज दैट डिस्काउंट। डिस्काउंट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, आउटर कॉलम में। कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, आउटर कॉलम में। नेक्स्ट अमाउंट दैट इज एडवांस गिवन टू शाहरुख, ऑलरेडी मैंने बोला दो, इसका क्या होगा बैलेंस शीट असेट्स, ठीक है, आउटर कॉलम में। यहाँ पे देखिए आउटर कॉलम में 10,000 लिखा मैंने। नेक्स्ट अमाउंट कैश इन हैंड, आउटर कॉलम में जाएगा। कैश एट बैंक, आउटर कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट अमाउंट इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, यहाँ पे आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में मैंने लिखा, ठीक है। नेक्स्ट अमाउंट क्या दिया हुआ है, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। नेक्स्ट अमाउंट क्या दिया है, रॉयल्टीज, ओके, रॉयल्टीज यहाँ पे लिखा, ओके। उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है तो उसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पे लिखा इनर कॉलम में। नेक्स्ट अमाउंट परचेज, नेक्स्ट अमाउंट क्या दिया हुआ है परचेज, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज के ऊपर भी एडजस्टमेंट है तो उसको इनर कॉलम में लेस परचेज रिटर्न। नेक्स्ट क्या है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल। अभी हम लोग क्रेडिट साइड आ जाएंगे। क्रेडिट साइड का सबसे पहला आइटम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल मैंने क्या बोला, क्रेडिट साइड आएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना दिया हुआ है 45,000 शिल्पा का दिया है, और यहाँ पे कितना दिया है 45,000 कैटरीना का दिया है। क्लियर। नेक्स्ट अमाउंट दैट इज बिल्स पेबल। बिल्स पेबल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कहाँ पे लिखेंगे, आउटर कॉलम में। नेक्स्ट वन बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटर कॉलम में। नेक्स्ट अमाउंट लेस परचेस रिटर्न, तो परचेस रिटर्न माइनस करेंगे, 50,000 में से 1480 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, माइनस करने के बाद फाइनल अमाउंट कितना आएगा 48,520। नेक्स्ट अमाउंट क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स, आउटर कॉलम में। नेक्स्ट वन बैंक लोन, आउटर कॉलम में। नेक्स्ट अमाउंट क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ये भी कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इंटरेस्ट भी आउटर कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पे लिखा देखो मैंने 1,500। नेक्स्ट अमाउंट क्या दिया हुआ है, दैट इज ओल्ड आरडीडी दिया है, तो यहाँ पे देखो ओल्ड आरडीडी मैंने कहाँ पे लिखा है, ट्रायल बैलेंस का आरडीडी ओल्ड आरडीडी होता तो उसको मैंने इनर कॉलम में लिखा 1,000। क्लियर। नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, सेल्स, तो सेल्स हम लोग ने कहाँ पे लिखा, इनर कॉलम में। उसको माइनस करके क्या करेंगे, फाइनल अमाउंट डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा फाइनल कॉलम में 1,18,000। क्लियर। नेक्स्ट अमाउंट क्या दिया हुआ है सब में, अभी क्या हो गया, पूरा आइटम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का ये, इसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट। तो इसको किसी के ऊपर स्टार मार्क नहीं किया तो इसका एक कॉलम कहाँ पे जाएगा, एक तो ट्रेडिंग क्रेडिट, ओके, दूसरा कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट असेट। तो यहाँ पे आप देखिए बैलेंस शीट असेट्स में मैंने ट्रांसफर किया, कितना अमाउंट दिया हुआ है 58,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड रॉयल्टी। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ पे देखो लिखा मैंने, अमाउंट कितना दिया हुआ है, दैट इज 800। ऐड करेंगे तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 3,800। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे लिखा मैंने आउटस्टैंडिंग वेजेस, यहाँ पे लिखा आउटस्टैंडिंग वेजेस, अमाउंट कितना रहेगा 800, कितना रहेगा 800। नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी, तो यहाँ पे देखिए प्रीपेड सैलरी माइनस होता है 5,000 में से कितना माइनस करेंगे, 2,000 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में कितना आएगा, आउटर कॉलम में कितना आएगा 3,000। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे पास करेंगे, असेट साइड में, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैंने असेट साइड में पास किया। क्लियर। नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, आरडीडी, ओके, न्यू बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी। तो ये वर्किंग नोट मैंने ऑलरेडी करके दिखा है तो मैं फिर से कर दे रही हूँ। पहले 1,000 हम लोग माइनस करेंगे, 1,000 माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद कितना आएगा इधर 39,000 आएगा, और 39,000 के ऊपर क्या करेंगे हम लोग, इसका 1,000 का यहाँ पे दूसरा इफेक्ट कर दिया, ओके। फिर 39,000 के ऊपर हम लोग 3% आरडीडी, तो आरडीडी देखिए हमारा कितना आया 1170, ओके। फिर फाइनल डेटर्स का अमाउंट 37,830, वर्किंग नोट 1, ये क्या आएगा वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 में आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो है कौन सा है, न्यू आरडीडी 1170, ये हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज न्यू आरडीडी में। ये भी वर्किंग नोट में करेंगे तो आपको समझ में आएगा। वर्किंग नोट नंबर 3, फाइनल अमाउंट देखो 1570, पूरा यहाँ पे लिख दिया। क्लियर।
तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 3, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी। ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी का पूरा हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। ये भी मैंने कैलकुलेट करके बताया है वर्किंग नोट 2 में। तो कितना आएगा, 37,800 का 5%, 1890। इसका दूसरा इफेक्ट ओके करेंगे। फिर उसके बाद फर्नीचर का 10%, 1725, और इसको आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो दोनों माइनस करके मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया। और उसके बाद बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों डेप्रिसिएशन क्या किया, साथ में लिख दिया। आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अलग अलग लिख सकते हैं। तो देखो 1890 प्लस 1725 इज इक्वल टू 3615। तो यहाँ पे मैंने टोटल करके लिख दिया। नेक्स्ट अमाउंट, ओके। सो आई थिंक सो अपना सारा एडजस्टमेंट हो गया। अपना क्या हो गया, सारा एडजस्टमेंट हो गया। अब एडजस्टमेंट करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने बाय मिस्टेकली एक एडजस्टमेंट नहीं किया था, दैट इज आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी का, और यहाँ पे स्पेस भी नहीं बचा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो इसी के साथ हम लोग ऐड कर देंगे। 1500 था आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी, तो ये 1500 क्या होगा, 2000 में ऐड होगा, तो टोटल रॉयल्टी कितना हो जाएगा, 3500। क्लियर, 3500। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे, रॉयल्टीज दूसरा इफेक्ट कहाँ पे करेंगे, 1500 करेंगे। तो टैली करने से पहले ये हमारा सबसे पहला स्टेप क्या किया हम लोग ने, पोस्टिंग। दूसरा इफेक्ट क्या किया हम लोग ने, एडजस्टमेंट। और तीसरा क्या करने जा रहे हैं हम लोग, टैली। कभी भी टैली करने से पहले और बैलेंसिंग करने से पहले क्या करने का, एक बार पूरे सम को चेक करने का कि आपने पूरा आइटम किया है या नहीं किया। क्या होता है, सम टाइम जब हम लोग सम करते रहते तो कोई एडजस्टमेंट करना हम भूल जाते, या किसी किसी का 2 इफेक्ट करना भूल जाते। तो उसको पहले एक बार फटाक से चेक करने का। सबसे पहला क्या था, क्लोजिंग स्टॉक। देखो यहाँ पे 2 इफेक्ट मैंने किया है कि नहीं, 2 इफेक्ट किया है। दूसरा कौन सा था, आउटस्टैंडिंग किसके ऊपर था, वेजेस का था, रॉयल्टी का भी था। तो वो मुझे पता चला कि रॉयल्टी का मैं करना भूल गई, तो यहाँ पे मैंने लास्ट में कर दिया। क्लियर। फिर उसके बाद क्या था, दैट इज बैड डेब्ट्स वाला था। फिर प्रीपेड था। तो ऐसे करके मैं एक बार चेक करने का, वंस यू हैव टू चेक दैट यू हैव डन ऑल द एडजस्टमेंट और नॉट, फिर टैली करने का। बिकॉज जब एक बार हम लोग टैली कर देते हैं और बैलेंसिंग कर देते हैं, फिर अगर हमको कुछ याद आता है कि मिस्टेक हुआ है तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्रेडिंग अकाउंट टोटल करते हो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस टोटल करते हो। तो इसीलिए देखो मैंने बोला है ज़्यादा स्पेस छोड़ने का दोनों के बीच में। तो ट्रेडिंग का टोटल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे ट्रेडिंग का टोटल कितना आएगा, दैट इज 1,36,000, और उसको दोनों साइड में लिख लेंगे 1,36,000। उसमें से क्या करेंगे, पूरा डेबिट साइड आइटम माइनस करेंगे। 65,000, 3,800, 4,000, 3,500, 48,520, इतना पूरा माइनस करेंगे। तो क्या आएगा अमाउंट, 51,800। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। क्या होगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। क्लियर व्हाट आई सेड। सम टाइम ऐसा भी होता है, लॉस आता है। ओके, तो जब डेबिट साइड अमाउंट ज्यादा रहेगा तो आपको क्रेडिट साइड माइनस करना रहेगा, और तब बैलेंस कहाँ पे लिखने का, क्रेडिट साइड। और वहां पे क्या लिखा जाएगा, तब यहाँ पे लिखा जाएगा बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन। तो आई विल डू वन सम विच इज बेस्ड ऑन लॉस ऑल्सो। इसका क्या करेंगे, दूसरा इफेक्ट करेंगे। इसको कहाँ पे करेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, है कि नहीं। तो यहाँ से अपना प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम शुरू हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, टू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। इसका अमाउंट कहाँ पे लिखा, आउटर कॉलम में लिखा, आउटर कॉलम में लिखा। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को बैलेंस करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस करेंगे तो अगेन अब अमाउंट देख के पता कर सकते हो कि क्रेडिट साइड ही ज्यादा लग रहा है, तो इसीलिए क्रेडिट साइड को क्या करने का, टोटल करने का, और उसको लास्ट वाले कॉलम में लिख लेने का। क्लियर। तो पहले ये सब जो हम लोग बैलेंस लिखते हैं इसको पहले आप पेंसिल से कीजिए, तो जो आपके लिए क्या होगा, इजी होगा। अगर कभी क्या होता है, इस साइड का भी अमाउंट ज्यादा आया तो हम लोग रफ करके क्या कर सकते हैं, इस साइड का अमाउंट, डेबिट साइड का अमाउंट दोनों साइड लिख सकते हैं। क्लियर। तो इधर कितना आएगा, 52,680। ओके, 52,680 में से क्या करेंगे, ये सारा आइटम, ये सारा डेबिट साइड, कौन सा वाला, प्रॉफिट एंड लॉस का, पूरा नहीं माइनस करना है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम। 1570, 4,000, 3,000, 23, 2030, 1,000, 2,000, 3615, ये माइनस करेंगे तो जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा,
35,465, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आएगा, 35,465 हमारा बैलेंस आएगा। अब ये जो बैलेंस आता है, ये बैलेंस को हमको इक्वली डिवाइड करना है। 35,465 को आप जब डिवाइड बाय 2 करोगे तो डेफिनेटली 0.5 में आएगा। क्या आएगा? 0.5 में। तो जब 0.5 में आने लगता है तो हम लोग क्या करने का 0.5 में हम लोग नहीं ले सकते, अंडरस्टूड। तो उसको क्या करने का, शिल्पा को एक क्या कर देने का, शिल्पा का 1.5 कम कर देने का और कैटरीना का 1.5 क्या करने का, इंक्रीज कर देने का। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है 37,700। आप जब इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका अमाउंट कितना आएगा, 17,732.5, फिर 17,732.5। तो मैंने क्या किया, 0.5 को हटाने के लिए यहाँ से क्या किया, शिल्पा का 0.5 हटाकर वो कैटरीना में ऐड कर दिया। तो कैटरीना का कितना हो गया, 37,733 और शिल्पा का क्या हो गया, 17,732। तो दैट विल नॉट अ मिस्टेक। ये मिस्टेक नहीं होता है जब 0.5 में आता है। तो एक कम, किसी का भी आप चाहिए तो कैटरीना का भी एक कम कर सकते हो, शिल्पा का भी बढ़ा सकते हो। लाइक 17,733 आप शिल्पा का लिख सकते हो एंड 17,732 आप कैटरीना का भी लिख सकते हो। क्लियर? तो जब 0.5 में आता है तभी आप एक पार्टनर से एक क्या करने का, कम करने का और एक में ऐड कर देने का। क्लियर? अब इसका हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। तो प्रॉफिट हमेशा कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में शिल्पा का अमाउंट कितना है, 17,732 और कैटरीना का कितना है, 17,733। क्लियर? ये करने के बाद अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करेंगे, यहाँ पे पहले क्रेडिट साइड का लिख लेंगे क्योंकि डेबिट साइड एक ही आइटम है तो डेफिनेटली क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा। तो टोटल कितना आ रहा है, 62,732, 62,733। उसमें से 2,000 3,000 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको बैलेंस मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो बैलेंस कितना मिला, 62,732 में से माइनस किया तो 60,732 और यहाँ पे 59,733। क्लियर? अब इसका इफेक्ट हम लोग इसको कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। तो बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में कैपिटल, शिल्पा का कैपिटल 6732, ओके, और कैटरीना का 59,733। तो यहाँ पे हम लोग ने लिख लिया, इनर कॉलम में लिखेंगे, ये दोनों को ऐड करके हम लोग ने आउटर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो आउटर कॉलम में इतना आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, टैली कर देंगे। दोनों साइड का अमाउंट आप टैली करोगे तो क्या होगा, liability should be equal to the assets. Once your liability should equal to the assets, इस मीन जब आपका दोनों साइड का अमाउंट राइट आ रहा है, मतलब दोनों इक्वल आ रहा है, टैली हो रहा है, तो मतलब ये आपका सम पूरा राइट है। क्लियर व्हाट आई सेड? वंस अगेन मैं बता दे रही हूँ, सोल्यूशन करते समय क्या करना रहता है, सबसे पहले हमको ट्रायल बैलेंस के आइटम को पोस्टिंग करना रहता है, फिर हमको क्या करना रहता है, एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट पास करना रहता है, फिर हमको क्या करना रहता है, बैलेंस करना रहता है। बैलेंस करते समय सबसे पहले क्या बैलेंस करने का, ट्रेडिंग बैलेंस करने का, उसको ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस में करने का, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस करने का, उसको ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल में करने का, फिर पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस करने का, उसको ट्रांसफर कहाँ पे करने का, बैलेंस शीट में, और फिर बैलेंस शीट को क्या करने का, टैली करने का। मतलब लायबिलिटी साइड किसके इक्वल आना चाहिए, असेट साइड। तो देखो मैंने यहाँ पे टैली किया, तो आप लोग आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, 12th स्टैंडर्ड में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो आप टोटल कैसे करोगे, एक नोटबुक में डेबिट साइड का सारा आइटम लिखने का और दूसरे साइड में क्रेडिट साइड का सारा आइटम लिखने का और क्या करने का, ओरली उसको पूरा टोटल करने का। तो कितना आएगा, 1,87,265 और सेम अमाउंट कहाँ पे आएगा, क्रेडिट असेट साइड का भी आएगा, 1,87,265। जब आपका लायबिलिटी और असेट दोनों टोटल इक्वल आ रहा है उसको हम लोग टैली बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा पूरा सम टैली हो गया। क्लियर? तो ये हमारा पूरा सम टैली हो गया। तो इससे मैंने क्या किया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का 2 सम मैंने क्या किया, अपने 2 सम का वीडियो अपलोड कर दिया। क्लियर? सो I think so you all understand the concept. I took a lot of effort to make that sum easy for you all. Okay, so if you like,
please subscribe the channel. If you have any doubt in any item, please mention in the comments box. I will try to solve that doubt. Okay, and if you like it, please share with your friends. Stay safe, stay happy, stay connected with me. I will bring more and more video which is based on the 12th standard Maharashtra board students. Okay, thank you.